Dear students, today we are going to learn the exercise of the chapter The Refund. As you can see here, the name of the chapter is The Refund. This is the fifth chapter of your special English textbook of class 10th. The author, the writer of this lesson is Fritz Carenthi. So let's start the exercise. Under the exercise, the first section is vocabulary section. यानी आपने इस पाठ में जो भी वोकैबुलरी सीखी हैं, नए शब्द सीखे हैं, नए एक्सप्रेशन सीखे हैं, उनका यूज कैसे कर सकते हैं. तो पहला है बाय हुक और बाय क्रूक. बाय हुक और बाय क्रूक का मीन्स होता है एनी हाउ, किसी भी तरीके से. सो द सेंटेंस विल लुक लाइक ही वांट्स टू बिकम एन IAS बाय हुक और बाय क्रूक. वह किसी भी तरीके से IAS बनना चाहता है. द सेकंड वन इज व्हाट द हेल. What the hell means you are doing something which is not important, you are just wasting your time, that work is not suitable to you. In हिंदी हम कह सकते हैं बकवास. तो what the hell were you doing in the examination room? तुम परीक्षा कक्ष में क्या बकवास कर रहे थे. The third one is that plain enough? Is that plain enough means होता है Are you able to understand? Understandable, easy to understand. So the sentence will be don't waste your precious time. Is that plain enough to you? अपना समय बर्बाद मत करो, क्या यह तुम्हें समझ में आया. उसके बाद the next one is will go straight. सीधे जाना. This road will go straight to the railway station. यह रोड सीधे रेलवे स्टेशन को जाती है. द नेक्स्ट वन इज गुड फॉर नथिंग. गुड फॉर नथिंग मीन्स अ पर्सन हु इज यूजलेस. नकारा जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो किसी काम का ना हो. मोहन इज गुड फॉर नथिंग पर्सन. मोहन एक नकारा व्यक्ति है, वो किसी लायक नहीं है. और जो किसी लायक ना हो उसको नकारा, नालायक, कुछ भी आप कह सकते हैं. God forbid. The next one is God forbid. भगवान ना करे, ईश्वर ना करे. इसका एक्सप्रेशन हिंदी में ये. The use of this sentence will look like God forbid how we shall meet our daily requirements if the grocery does not reach in due time. क्या होगा, भगवान ना करे, अगर हमारे पास ग्रोसरी यानी किराने का सामान समय पर नहीं पहुंचा तो हमारी दैनिक आवश्यकताओं का क्या होगा, डेली रिक्वायरमेंट्स का क्या होगा. उसके बाद है ब्रावो. ब्रावो ये एक विजयी मुद्रा है. जब हम किसी चीज़ में खुशी मनाते हैं, कुछ जीत जाते हैं, तो उसमें हम ब्रावो कहते हैं. तो सेंटेंस है वी हैव वॉन द मैच. हम मैच जीत गए. द नेक्स्ट वन इज हैव माई ईयर ओपन. Have my ears open. Have my ears open means to be careful. चौकन्ना होना, सतर्क रहना. I will have my ears open from now on. अब मैं सतर्क रहूँगा, केयरफुल रहूँगा. The next one is as a matter of fact. As a matter of fact means होता है in reality, वास्तव में, actually. As a matter of fact, I don't want to go to Delhi. वास्तविक बात यह है कि मैं दिल्ली जाना ही नहीं चाहता. And the next one is with flying colors. With flying color means to be successful. Ramesh came out with flying colors after winning the trophy. रमेश जब ट्रॉफी जीत गया तो वह बाहर सफल व्यक्ति की मुद्रा में, सफलता प्राप्त किए हुए व्यक्ति की तरह आया. उसके बाद द सेकंड क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट इन योर नोटबुक. इसमें 4 स्पेलिंग दी हैं, उनमें से 3 गलत हैं, एक सही है.
उसको आपको पहचानना है और उसके बाद उनको अपनी नोटबुक में लिखना है. So as you can see there are 4 spelling of tuition. Okay, so what is the correct spelling here? In the first one, the correct spelling is tuition, Tuition. The second one is courtesy, Courtesy, courtesy. The third one is mathematics, and mathematics. There are different varieties of the spelling of mathematics, but the right one is B, mathematics. The word which is black and bold, that is the answer. In the next one, Einstein, and the fourth one is Einstein. So the fourth one is correct. And in the last, unparalleled. This one is correct and other one are wrong spellings. Now come on to the third question. Write in your own words what the following expressions mean in the lesson. अपने शब्दों में बताइए ये जो एक्सप्रेशन आए हैं इनकी मीनिंग क्या है. तो पहला है, द फर्स्ट वन इज अप्रूव्ड. अप्रूव्ड मीन्स होता है एग्री विथ, सहमत होना. एग्जामिन इन, टेस्टेड इन. एग्री विथ, टू गिव कंसेंट. एग्री विथ सहमत होना, टू गिव कंसेंट मीन्स अपनी सहमति देना. एंड द लास्ट वन इज एंटाइटल्ड टू. एंटाइटल्ड टू मीन्स डिजर्व्ड फॉर, किसी चीज का अधिकारी होना, चाहे वो प्रमाण पत्र हो, चाहे प्रशंसा हो, कुछ भी. उसके बाद द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन. कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आपको टेक्स्ट पढ़ना होता है और उसके बाद यदि आप समझ पाए हैं तो यू आर एबल टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन. अंडर द फर्स्ट सेक्शन, answer the following questions in about 25 words. Means the word limit is 25 words. Okay? So the first question is, why did Wasserkopf come to school after 18 years? Wasserkopf 18 साल बाद स्कूल क्यों आया था? So as you know the answer is Wasserkopf came to school after 18 years to take a refund of his tuition fees. वो 18 साल बाद अपनी ट्यूशन फीस लेने आया था. बिकॉज द एजुकेशन ही गेंड इन द स्कूल, जो इसने स्कूल में शिक्षा ग्रहण की है, फेल्ड टू प्रोवाइड हिम एनी विजडम. उसने उसको किसी भी प्रकार की बुद्धि प्रदान करने में फेल्ड हो चुकी है. इट हैड मेड हिम वर्थलेस. इसने उसको नकारा, नालायक साबित किया है. द सेकंड वन इज, व्हाट were Wasserkopf's arguments to get his fees back? अपनी ट्यूशन फीस वापस पाने के लिए वासरकॉफ ने क्या क्या तर्क दिए, क्या क्या आर्गुमेंट उसने किया था. So the answer is Wasserkopf argued with the principal that he had received education in that school's 18 years back, but he did not get his money's worth. उसने 18 साल पहले इस विद्यालय में अपनी शिक्षा दीक्षा पाई थी, लेकिन उसको अपने पैसे की कीमत नहीं मिली. मनी इज वर्थ. उसने जितना पैसा खर्च किया है उसकी कीमत उसको नहीं मिली. बिकॉज ही डिड नॉट लर्न एनीथिंग, क्योंकि उसने कुछ नहीं सीखा. ये उसके तर्क हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं. इट हैड मेड हिम वर्थलेस. इस शिक्षा ने उसको नालायक बनाया, बेकार बना दिया. Now come on to the third question. What is the third question? The principal summoned the masters for a most extraordinary conference. प्रिंसिपल ने सभी टीचर्स को एक अद्वितीय कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था, मीटिंग के लिए बुलाया था. What did he tell them? प्रिंसिपल ने उनसे क्या कहा कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में? So the answer is, the principal told them about Wasserkopf, who had come to school to get his tuition fees refunded.
प्रिंसिपल ने सभी लोगों को वासरकॉफ के बारे में बताया जो अपनी ट्यूशन फीस वापस पाने के लिए आया था। इट वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड, इनक्रेडिबल, अभूतपूर्व, अद्वितीय एंड अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल एंड अनयूजुअल, असामान्य केस इन हिज कैरियर एज ए स्कूल मास्टर। द प्रिंसिपल टोल्ड टू द स्कूल मास्टर दैट this case was an unprecedented, incredible and unusual case in whole the career as a schoolmaster. The next question is, why did the principal consider Wasserkopf's case a most unusual state of affairs? प्रिंसिपल ने वासरकॉफ के केस को सबसे अनयूजुअल, सबसे असामान्य स्टेट ऑफ अफेयर्स, मामला, कंडीशन, सिचुएशन, स्थिति, सबसे असामान्य मामला क्यों माना था? सो द आंसर इज द प्रिंसिपल कंसिडर्ड वासरकॉफ्स केस अ मोस्ट अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स बिकॉज ड्यूरिंग हिज कैरियर एज अ स्कूल मास्टर ही हैड नेवर कम अक्रॉस का मीन्स होता है सामना होना, उस चीज़ को फेस करना या उस रास्ते में आना। He had never come across such an incident when a former pupil would come to school to get his tuition fees refunded. उसके करियर में अभी तक के ऐसा कभी मामला नहीं आया जिसमें कोई फॉर्मर प्यूपिल मीन्स होता है पुराना छात्र आया हो और उसने अपनी फीस वापस मांगी हो। Now, come on to the fifth question. What did the mathematics teacher suggest to checkmate Wasserkopf? मैथमेटिक्स मास्टर ने वासरकॉफ को चेकमेट यानी डिफीट करने के लिए क्या सजेशन दिया, उसका सुझाव क्या था? सो listen the answer here. You can also watching the video, you can pause the video and write the answer of these questions in your notebook. The mathematics teacher said that they were dealing with shy, crafty individuals. मैथमेटिक्स मास्टर ने कहा कि वो एक चतुर, चालाक और क्राफ्टी इंडिविजुअल से डील कर रहे हैं, उससे को फेस कर रहे हैं। सो ही सजेस्टेड टू आस्क सिंपल क्वेश्चन, इसलिए उसने सजेशन दिया कि इससे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाए सो दैट ही मे नॉट फेल, जिससे वो फेल ना हो। ही मस्ट नॉट फेल, उसे फेल मत होना देना। द 6th number question is, why did the mathematics teacher want to prevent Wasserkopf from failing? मैथमेटिक्स टीचर जो था वो वासरकॉफ को फेल होने से क्यों रोकना चाहता था, प्रिवेंट? सो द आंसर इज द मैथमेटिक्स टीचर वांटेड टू प्रिवेंट वासरकॉफ फ्रॉम फेलिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ओके, बिकॉज ही न्यू दैट, वह जानता था कि ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू फेल इन द री-एग्जामिनेशन, वासरकॉफ फेल होने का पूरा प्रयास करेगा इस दोबारा परीक्षा में। बाय फेलिंग, और यदि फेल होता है, ही वुड सक्सीड इन रिफंडिंग हिज ट्यूशन फीस, वह अपना ट्यूशन फीस पाने में सफल हो जाएगा। दिस वुड प्लेस देम इन ऑकवर्ड पोजीशन, और इस घटना अगर ऐसा हो जाता है तो यह घटना उनको एक बेतुकी, भद्दी, परेशानी वाली परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देगी, क्योंकि आज एक का रिफंड होगा, अगले दिनों में और इस प्रकार के वासरकॉफ जैसे लोग भी फीस वापस पाने आ जाएंगे। नाउ कम ऑन टू द 7th question. What were the qualities of Wasserkopf that the principal and the masters evaluated? वासरकॉफ की कौन कौन सी क्वालिटीज़ को प्रिंसिपल और उनके शिक्षकों ने इवेल्युएट किया, मूल्यांकित किया? सो लुक एट द आंसर हियर. द प्रिंसिपल एंड द मास्टर इवेल्युएटेड द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ वासरकॉफ. प्रिंसिपल और उनके शिक्षकों ने
निम्नलिखित क्वालिटीज को, निम्नलिखित गुणों को इवेल्युएट किया था. द फर्स्ट वन इज पेट्रियार्कल मैनर्स, द सेकंड वन इज जेंटलमैनलीनेस, द थर्ड वन इज courtesy, the fourth one is physical culture, the fifth one is alertness, the next one is perseverance, लगन मैंने आपको बताया है, बाकी ऊपर के ही सारे मीनिंग्स आपको पता है, एंड लॉजिक एंड एम्बिशन, तर्क शक्ति और महत्वाकांक्षा. दीज आर द क्वालिटीज द प्रिंसिपल एंड द हिज मास्टर्स इवेल्युएटेड इन वासरकॉफ. Now look at the question number 8. On what ground was Wasserkopf awarded in excellent in physical culture? जो उसकी शारीरिक संरचना थी, फिजिकल कल्चर था, वो किस आधार पर एक्सीलेंट पाया गया? वासरकोफ को फिजिकल कल्चर में किस आधार पर एक्सीलेंट दे दिया गया था? So what's the answer here? When history master asked Wasserkopf to sit on the chair, जब हिस्ट्री मास्टर ने उसको चेयर पर बैठने के लिए कहा, he refused to sit, वो उसने बैठने से मना कर दिया. He said that he would stand, उसने बोला कि वह खड़े खड़े ही एग्जाम देगा. On this ground, इस आधार पर, यहाँ ग्राउंड का मतलब मैदान नहीं है, the ground means the basis, on this basis वासरकॉफ वाज अवार्डेड एक्सीलेंट इन फिजिकल कल्चर. इस आधार पर वासरकॉफ को फिजिकल कल्चर में एक्सीलेंट अवार्ड किया गया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट द फिजिक्स मास्टर पुट टू वासरकॉफ? फिजिक्स मास्टर ने वासरकॉफ के सामने कौन सा क्वेश्चन रखा था? सो यू आर टू राइट द क्वेश्चन द फिजिक्स मास्टर आस्क्ड to Wasserkopf. Okay, so listen the answer here. Physics master put a question to Wasserkopf, and the next part is question. Okay, do clocks in church steeples really become smaller as you walk away from them, or do they merely appear to become smaller because of an optical illusion? उसने कहा था कि चर्च के जो स्टीपल में, चर्च शिखर में जो क्लॉक्स लगी होती हैं, वो दूर जाने पर वास्तव में छोटी होती हैं, या कि हमारी ये आँखों का धोखा है, मिराज है. ऑप्टिकल इल्यूजन मीन्स मिराज, MIRAGE, दृष्टि भ्रम, आँखों का धोखा. ओके, द 10th नंबर क्वेश्चन इज, how much money according to Wasserkopf did the school owe to him? वासरकॉफ के अनुसार स्कूल को कितना पैसा चुकाना था? और मीन्स होता है ऋणी होना, कितना उनके ऊपर था पैसा वासरकॉफ का. So look at the answer here. According to Wasserkopf, the school owed to him a total sum of 6,450 crowns and 50 thalers. This is the total sum the school owed to Wasserkopf. Now come on to the next one. What was the final result that principal presented to Wasserkopf? वह अंतिम निर्णय क्या था जो वासरकॉफ को बताया गया? द प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड दैट वासरकॉफ पास्ड विथ डिस्टिंक्शन इन एवरी सब्जेक्ट. प्रिंसिपल ने डिक्लेयर किया कि वासरकॉफ सभी विषयों में डिस्टिंक्शन से पास हुआ है. डिस्टिंक्शन मीन्स होता है अच्छे ग्रेड से, 75 के ऊपर. ही हैड अगेन शोन दैट ही वॉज इंटाइटल्ड टू डिजर्व फॉर, मैंने अभी बताया है, वह उसका हकदार है. आज उसने फिर से साबित किया कि वह इन सर्टिफिकेट का हकदार है. टू द सर्टिफिकेट दे अवार्डेड हिम इन हिज ग्रेजुएशन. वह आज फिर से साबित हुआ है कि उसको जो ग्रेजुएशन में सर्टिफिकेट दिए गए थे वो उनका अधिकारी था. इन दिस वे we have completed the questions of the section A, which have the word limit of 25 words. Now come on to the wrong answers. The word limit is about 50 words. Okay, so
Look at the question number first. The question is, what was the story that the geography master narrated in connection with the city of Brunswick? जियोग्राफी मास्टर ने ब्रूंसविक सिटी से मिलती हुई संबंधित कौन सी स्टोरी उसने सुनाई थी? So the answer is, the geography master told that once the Emperor Barbarossa was riding into the city, he met a young peasant girl. She was munching a bun. He called out to her and asked the name of the city. The peasant girl answered, "Same to you, sir." Then she stopped because her mouth was full. The emperor laughed and said, "Ho ho, so the name of the city is same." जियोग्राफी मास्टर ने एक कहानी बताई कि एक बार राजा बारबरोसा उस शहर में आए थे। वो एक यंग किसान लड़की से मिले। वो मंचिंग कर रही थी बन की। उससे राजा ने पूछा कि इस शहर का नाम क्या है, तो उसने कहा सेम टू यू। उसके बाद वो बोल नहीं पाई क्योंकि उसका मुंह फुल था बन से। तो एम्परर हंसा और बोला कि कोई बात नहीं, इस सिटी का नाम सेम है। नाउ कम ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. हाउ डिड द मास्टर्स एस्टेब्लिश दैट द 30 years war lasted only 7 meters? Here 7 is not written, beg your pardon, you can write here 7. Okay, किस प्रकार से मास्टर्स ने ये सत्यापित कर दिया, स्थापित कर दिया कि 30 साल का चला युद्ध 7 मीटर चला? This is an interesting one. So the answer is, the history master asked, how long did the 30 years war last? Wasserkopf answer was exactly 7 meters. The history master declared that Wasserkopf had interrogated the subject according to modern researches based on relativity, जो मैथ टीचर ने कहा था, the quantum theory. The math teacher added that Einstein has taught that time is as real as space and matter. The next remaining part of the question answer is, if the mass system is reduced to a unit, the year can be represented by a meter. Simply, the 30 years war had other activities also. 30 साल के युद्ध चला होगा तो उसके बीच में और की भी कई सारी एक्टिविटीज हुई होंगी, क्योंकि रात में युद्ध नहीं होता था, आपने पढ़ा है। उसके बाद वो खाना पीना भी खाते थे, उसके बाद सोशल डिस्ट्रैक्शन भी होता था। इन सबों को उन्होंने काट पीट के 7 मीटर सिद्ध कर दिया। द एक्चुअल वॉर लास्टेड ओनली 7 meters, विच इज इक्वल टू 7 meters. दिस इज द आंसर. Now come on to the third one. How did the physics master explain that the look of the ace was so sad? फिजिक्स मास्टर ने कैसे एक्सप्लेन किया कि जो गधे होते हैं वो दुखी होते हैं? तो look at the answer. At the question, do clocks in church steeples really become smaller or not as you walk away from them? Wasserkopf replied, "You give me a pain in the neck." वासरकॉफ ने इसके उत्तर में कहा था कि तुमने मेरे गर्दन में दर्द कर दिया। You are an ace. तुम एक गधे हो। The physics master explained this answer and said that there is a similarity between the sadness of human beings and ace's face. फिजिक्स मास्टर ने बताया कि मनुष्य के निराश दुखी होने और गधे के चेहरे में सिमिलरिटी होती है। इट इज़ बिकॉज ऑल ऑफ अस आर विक्टिम ऑफ इल्यूजन, क्योंकि हम सब लोग किससे पीड़ित हैं, किसके शिकार हैं, किससे सफ़र करते हैं? इल्यूजन से, मिराज से। हैंस द आंसर प्रोड्यूस्ड बाई वासरकॉफ इज एक्सीलेंट। इसलिए वासरकॉफ ने जो आंसर दिया वो एक्सीलेंट है। How did the mathematics teacher prove that he was more shrewd than the former pupil? मैथमेटिक्स टीचर ने कैसे सिद्ध किया कि वह उस पुराने छात्र से ज़्यादा चालाक, चतुर है, होशियार है? शुड एक पॉजिटिव वे में यूज होता है
होशियार। सो द आंसर इज, उत्तर है इसका, द मैथमेटिक्स टीचर वेरी टैक्टफुली प्रूव्ड, इस चीज़ को उन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से प्रूव किया था। हिमसेल्फ टू बी मोर shrewd than the former pupil. His first question to Wasserkopf was a simple one. उनका पहला क्वेश्चन जो था वासरकॉफ से वो बहुत सिंपल था, बट वासरकॉफ आंसर वाज आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं था। द मैथमेटिक्स टीचर शोड हिज फेवर टुवार्ड्स वासरकॉफ। उसके बाद मैथमेटिक्स टीचर ने उसका फेवर किया कि आपने उत्तर गलत दिया है, आपको पैसा वापस मिलना चाहिए। He said that his claim for refund was correct. उसने ये भी कहा कि तुम्हारा जो रिफंड का क्लेम है वो सही है, उसको आपको मिलना चाहिए। Then he asked him to calculate the amount of the refund correctly. उसके बाद उन्होंने उसका अमाउंट कैलकुलेट करने को कहा जितना उसने पैसा चुकाया था स्कूल की एजुकेशन में। Wasserkopf did it with minute correction. उसने झटके से पूरा का पूरा कैलकुलेशन उनके सामने बता दिया। This answer proved shrewd than the former pupil. इस चीज़ ने उसको ज़्यादा वो साबित कर दिया, चतुर साबित कर दिया। Him a mathematical genius, कि वह एक मैथमेटिकल जीनियस है। क्वेश्चन नंबर 5, How did the three masters shattered Wasserkopf plan to get the refund? किस प्रकार से तीन मास्टरों ने वासरकोफ के प्लान को, जो कि उसका पैसा वापस करने का प्लान था, उसको shattered कर दिए। shattered मीन्स होता है चकनाचूर, shattered. So the answer is, the three masters shattered Wasserkopf plan to get the refund. They analyzed his answers positively. उन्होंने उनके आंसर को सकारात्मक रूप से एनालाइज किया। हिस्ट्री टीचर्स प्रूव हिज आंसर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी। द फिजिक्स टीचर सेड दैट हिज आंसर यू आर एन एस वाज करेक्ट। फिजिक्स के मास्टर ने जो उसने उत्तर दिया था कि आप गधे हो, उसको भी सही साबित कर दिया। बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन, द मैथमेटिक्स टीचर मेड हिम टैक्टफुली टू गिव करेक्ट आंसर। और मैथमेटिक्स के टीचर ने धोखे से उसको सही उत्तर दिलवा दिया था। ही आस्क्ड हिम टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिफंड। अल्टीमेटली अंत में ही वाज डिक्लेयर्ड पास एंड सेंट आउट डिस्गस्टेड। वो निराश हताश उसको भेज दिए। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज परहैप्स द लास्ट क्वेश्चन। How far is a school or educational institution accountable for the future of students? बच्चों के भविष्य के लिए एक स्कूल या कोई भी शैक्षिक संस्था कितनी अकाउंटेबल, कितनी जिम्मेदार होती है? सपोर्ट योर आंसर विथ आर्गूमेंट्स गिवन इन द प्ले। आप अपने आंसर के सपोर्ट में उन तर्कों को दे सकते हैं जो इस प्ले में, इस नाटक में दिए गए हैं। सो द आंसर इज, द एम ऑफ ए स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज टू सिक्योर इट्स स्टूडेंट्स लाइवलीहुड। किसी भी स्कूल या संस्था का दायित्व होता है कि वह अपने छात्र के भविष्य को, छात्र के जीवन को सिक्योर करे, सुरक्षित करे, वह कमाने खाने लायक हो जाए। इट also aims at the cultivation of good conduct and habits among students. इनकी ये भी जिम्मेदारी होती है, इनका ये भी लक्ष्य होता है कि यह किसी भी छात्र में अच्छी आदतों और अच्छे आचरणों को कल्टीवेट करें, बढ़ाएं। Wasserkopf argued that he did not learn anything. Wasserkopf ने ये तर्क दिया था कि वो कुछ नहीं सीखा है। He had turned into an incompetent ace. Incompetent means होता है अक्षम, नाकाबिल। He was unable to do any job. His language and manners also suffered a decline. उसका जॉब भी चला गया था, वो जॉब भी नहीं कर पा रहा था, और उसकी भाषा भी, उसके मैनर्स भी
डिक्लाइन हो रहे थे, कम थे, उनमें क्षय हुआ था। He did not possess gentlemanliness, उसमें ना तो जेंटलमैनलीनेस था, ना तो कॉर्टसी थी, ना अलर्टनेस थी, ना फिजिकल कल्चर था, ना लॉजिक था। ये सारी चीज़ें तो उन मास्टरों ने अपने से टैक्टफुली साबित कर दिया था, उनमें ये थे नहीं। द स्कूल वॉज नॉट अकाउंटेबल फॉर हिज फेट, स्कूल उसके भाग्य के लिए जिम्मेदार नहीं है, बट स्कूल प्रोवाइडेड हिम एजुकेशन एंड 3 टीचर्स प्रूव्ड इट टू, स्कूल ने उसको शिक्षा प्रोवाइड की है और 3 शिक्षकों ने उसको प्रूव भी कर दिया। इनफैक्ट ही वॉज शूड इनफ टू डिमांड रिफंड ऑफ हिज फीस, वह उसके लायक नहीं था क्योंकि वह अभी भी ज़्यादा चतुर था अपनी ट्यूशन फीस मांगने के तुलना में। इस प्रकार से आपके इस चैप्टर के एक्सरसाइज संपन्न हुए। आप इसको वीडियो को बीच में रोक कर और इसके आंसर्स अपनी नोटबुक में करेंगे। और यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, एजुकेटिव लगते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको अच्छे लगते हैं। और सब्सक्राइब करने से आपको जो नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइमली मिल जाया करेगी।